सवाल था कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी है, तो किसी ने कहा 206, 205, एक ने कहा 401। I know where this is going. एक आंसर ने तो ना मुझे हिला के रख दिया। कहते हैं जी सर ये अल्लाह के मामले में आपको कुछ भी नहीं, हमें इंसानों को कुछ नहीं पता। अच्छा। ओके 206 है साइंटिफिक है। कहते नहीं जी आपको क्या पता है, साइंटिफिक को क्या पता, इंसान है, गलतियां होती रहती हैं, अल्लाह का निज़ाम है, आप बस छोड़ दें इस्लाम को। Wow. तो उसको होस्ट ने कहा तभी कहते हैं मेरी जान तभी तुमने कपड़ों की दुकान पे काम करते और चला गया वहां से। Hey, my name is Satir Ahmed, and you're listening to Popcorn. Each episode, I interview different guests from all over the world, and we all have one connection to Pakistan. Today's guest is a history buff, Satir Ahmed. So my name is Satir, पर पूरा नाम बताता हूँ, चौधरी अहमद अब्दुल सातिर कुम्मण. This is my dad has said me to like अब proudly बताया करो सबको, you have to have your own identity. My name is Ahmed Abdul Satir. My dad is very sad that my family didn't continue the whole process of he said I don't have the mentality कि oh my god we are Chaudhurys, but you should have your own family identity. So Satir currently lives in Canada, but by that I don't mean Toronto or Calgary or Vancouver, a lesser known place in Canada. Then I'm 22 years old. I live in Newfoundland, Canada. यहाँ पे एक ही मेन शहर है St. John's. And यहाँ पे मैं Bachelor of Computer Science का student हूँ. इस पे मैं एक साल हो चुका है मुझे यहाँ पे, and I'm finding it very peaceful to be honest. Newfoundland is an island off the east coast of the North American mainland, northeast of where I live in Boston. And while Boston is a relatively small city in the US, it has a greater population than all of Newfoundland. The capital of Newfoundland is a city called St. John's. Newfoundland had global coverage earlier in 2020 when a historic blizzard pounded the island, dumping 30 plus inches of snow in less than 24 hours. People were stuck inside their homes. The city of St. John's was put in a state of emergency, with businesses closed for over a week. Around that time is when Satir actually messaged me on Instagram. He even shared pictures of his situation during the blizzard, with snow covering his front door all the way to the top. We'll even share those pictures in the description of this episode. 8 months later, Satir is now on the podcast. He's going to be talking about not just life in Newfoundland, where he goes to school, but also extensively about his life spent in Qatar and the Middle East. The thing is, St. John's is not a city. You can call it a big town. So even if you wake up at 6 a.m. in the morning, the first thing you're gonna hear is maybe the sounds of birds chirping. Like everything is natural. I remember the first morning I woke up 6 a.m. and it was so quiet that मुझे लगा कि शायद ना दुनिया खत्म हो चुकी है मेरी, मैं सोता रहा हूँ इतनी देर के अंदर. The harbor is like 3 kilometers away from my house and it's a pretty long hill. आप देख नहीं सकते हैं. Voices coming from there is a very very low chance से आने का. तो वहाँ से भी जब शिप्स का जो कोई हॉर्न वगैरह होता है वो बजता है, तो इवन लाइक सुबह सुबह कभी आँख भी खुल जाती है उससे. तो वो बड़े मजे का सिनेरियो होता है यहाँ पे. बाकी फ्रॉम पाकिस्तान आई बिलोंग टू सियालकोट. आई हैवंट बीन टू सियालकोट, आई बिलोंग देयर, इतना मुझे पता है. तो मेरी फैमिली इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु केम टू इस्लामाबाद इन 1965, जब इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कैपिटल, अ वेरी प्लान्ड कैपिटल. माय ग्रैंडपेरेंट्स हेल्ड वेरी सीनियर पोस्ट इन द गवर्नमेंट institutions, you can say. We were in Pakistan till I was 16ish. Then my dad had a chance. He used to work in PTV rights as an engineer, so he got a chance to work in Qatar as a same job but in a different channel. So we just shifted to Qatar after that. So after spending like 3 to 4 years in Qatar, I just came here to St. John's, Canada, and just pursuing my degree. Say. Did you have a choice in coming to Newfoundland, or was this the best school that you could find at the time? To be honest, back in Pakistan, I used to. मैं बहुत सारे consultants के पास गया. So it turns out that Canadian universities do not give you as much commission to a consultant rather than Australian universities. तो पाकिस्तान में आप कहीं consultant के पास जाओ तो वो होता है ना, Canadian prospectus बंद करके साइड पे रखता है कि ये तो हो नहीं सकता. You should go to Australia. So I was almost going to Australia. I even had a cousin over there in the same university. Yeah. But at the last moment, Dad was like, "No, Canada, East of West Canada is the best." And you know, Trudeau सबके दिल पे राज करता है, including my dad's. Right. So I guess that's the reason I came here. And Canada is just so big. क्योंकि यहाँ पे हमारी assumption होती है कि when people say Canada, मैं कनाडा में रहता हूँ, we automatically think कि वो टोरंटो में रहते हैं. टोरंटो में रहता है. In reality, Canada is just so big.
अब न्यूफाउंडलैंड से आपने रोड Exactly. ट्रिप करना हो कोई to any nearby city, I think the closest one might be Montreal, the biggest one. Yeah, And they- Montreal, the biggest one is Montreal, exactly. Yeah, and even that's probably quite a ride for you, right? Newfoundland is a big ass island. मतलब मैं कहूँ तो उसको मैं नेशन डिक्लेयर कर सकता हूँ, to be honest. And to be honest, बांग्लादेशी इतने यहाँ पे मैं इसको बंगाली कॉलोनी डिक्लेयर कर सकता हूँ. Really? Yeah, बहुत. I have friend like जो मेरा सबसे oldest पाकिस्तानी friend है ना न्यूफाउंडलैंड के अंदर. He came back in 2012. वो कहता है कि उस वक्त there wasn't even a single देसी here. He says like जिस तरह तुम आज देख रहे हैं सारे बैठे हैं, कहते हैं इनमें से एक बंदा भी नहीं था यहाँ पे. तो 2016 2017 the influx of more students started from Pakistan. Most of the Pakistanis here, we are not from Pakistan, like especially undergrads, man. We are from the Khalij areas, Gulf के हैं. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Bahrain के काफी हैं. तो most of us undergrad की degrees के लिए हम सारे Gulf country Pakistanis हैं, but we live in the Gulf actually. Masters के students हैं, they are most of them are from Pakistan because they usually get visas easier over there for masters. क्योंकि masters are of two types. एक होता है funding based, they give you grants to study, and then there is one course based होके आप पैसे देते हो पढ़ने के लिए. So if you get a funding, the immigration को भी satisfaction होती है, बंदा slip नहीं होगा, he already has the money. So just grant him a visa. So उनको visa आराम से मिल जाते हैं. That's why most of the people in masters are from here from Pakistan. बाकी Bengalis बहुत ज़्यादा हैं. Then second number पे Indians हैं. Then a lot of people from the black nations, you can say, the lower South African side, Ghana, Zimbabwe. Then I guess Pakistanis, we are a very हम minority consider करते हैं अपने आप को भी. We are not very much in the university. हमारे हमसे पहले Indian, Bengalis, Indians, then फिर जो लैटिन अमेरिका है वहाँ से काफी लोग हैं. मतलब इट इज अ वेरी वेरी डाइवर्स एरिया. अच्छा. मेनलैंड कनाडा से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए. इट्स वेरी वेरी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन कनाडा टू बी ऑन. I got into University of Toronto. It costed me like $45,000 a semester, $45,000 a year. So and dad was like, "Do you want to do it? Should we take the risk?" I said, "Dad, for this आपको मुझे मामा छोटी बहन सबको ना किडनियाँ बेचनी पड़नी है एक सेमेस्टर की फीस के लिए." Yeah. So let's go with the safest option. You know, we can invest more when मैं masters करूँगा. तो और मजे की बात है मेरे पे उस दिन मैंने गलती से कह दी यार पढ़ने किसका दिल जाता है मास्टर्स से देखूंगा कि करूँगा कि नहीं करूँगा. ऐसी लान तान हुई है ना मेरे पे ऑलमोस्ट डिसोन करते करते रह गए थे वो मुझे. So they definitely want you to do it. I have to do it. I have no choice actually. That's the problem. मजे की बात है कि मेरा ये सेमेस्टर was supposed to be in the US. मेरा समर सेमेस्टर मुझे जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में मिल गया था ट्रांसफर. और मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी. मैंने कहा बेहतरीन काम हो गया ये तो. एक सेमेस्टर में 2 चीजें खड़काई जाएंगी. खड़काने से मेरा मुराद है मैं सीरियस गाय मैं बुरा बंदा नहीं हूँ. आई मेंट एज एन प्रॉपर रिलेशनशिप हो जाएगा मेरा. तो लेकिन पहले उन्होंने कोविड की वजह से मुझे मना कर दिया कि आपका उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. फिर वो BLM के प्रोटेस्ट शुरू हुए और मैं जॉर्ज मेसन के आसपास हालात देखे. मैंने कहा शुक्र है मैं नहीं गया भाई बचत होगी वहाँ पे. वैसे न्यूफाउंडलैंड का इन जनरल मैंने इतना सुना नहीं. तो मेरे ख्याल में गेस्ट भी हमारे ऐसे ही होंगे उन्होंने इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सीखा. So in general, I think the first time I heard more about Newfoundland was when this whole blizzard situation happened in the winter. So that's when it first came to the spotlight. I was like, and then shortly after that, I found out about the blizzard. मैंने नाम गौर किया Newfoundland. अच्छा ये भी जगह है. अच्छा ठीक है. And then maybe a week or two after that, I ran into you. Because I remember, right, जब मैंने Discord join किया था Pakord का, then back then I was in Qatar. Yeah, मैं कतर में था. When I came to first time I came to Canada, तो मैं direct St. John's में. And to me this was Canada. I was very happy here. मैं कहा मतलब ऐसा ही है. लोगों ने कहा और तुमने टोरंटो नहीं देखा, ये नहीं देखा तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं. मैंने कहा नहीं मेरे लिए सही है. Then I went to Qatar and वापसी पे ना मैं 5 घंटे टोरंटो घुमाया गलती से. और यार मैं कहते हैं ना जगह से प्यार हो गया मुझे. इस लोग कहते हैं कि इसका तो देसीनेस वहाँ पे नहीं. It's like मुझे आर्किटेक्चर बहुत मजे का लगता है. It's a blend of old and new. मुझे बड़ा एस्थेटिक लगता है. इट्स एक वो उसमें एक उस जिंदगी में वो एक हसल है जो कि मुझे अच्छी लगती है थोड़ी बहुत एक सर्टन एरिया ऑफ द सिटी में. आहिस्ता आहिस्ता ना आपको यहाँ की सुकून की आदत हो जाती है कि आप सुबह उठते हो द फर्स्ट थिंग दैट ग्रीट्स यू इन द मॉर्निंग इज अ ब्रीज. एक्चुअली इट्स नॉट कि हॉर्न की आवाज आएगी टेंडी पा 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 बसों का शोर नहीं है. आप शाम को 5 बजे निकलो 6 बजे निकलो एवरीथिंग इज एट पीस. आपको मुझे आई हैव अ स्वेयर प्रॉब्लम ऑफ एक्नी एंड कतार में आउटब्रेक्स बिकॉज वाई वो गर्मी है पसीना है पोल्यूशन इतनी है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द पेट्रोल एंड एवरीथिंग. यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ईयर एंड आई हैवंट हैड लाइक अ आउटब्रेक. यहाँ इटसेल्फ इज क्लीन. थिंक ऑन न्यूफाउंडलैंड इज के एक मेजर सिटी है सेंट जॉन्स. उसके बाद एक माउंट पर्ल है. मतलब वो माउंट पर्ल एंड सेंट जॉन्स लाइक पेंडी इन इस्लामाबाद 7 सिटीज है.
बाकी सिटीज़ वगैरह हैं, छोटी मोटी फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं कुछ। आई गेस दैट्स द रीज़न कि पॉपुलेशन इतनी नहीं है तो चीज़ें इतनी साफ़ नहीं है, प्लस दे कैनेडियंस तो ये ख्याल भी रखते हैं यहाँ की चीज़ों का। सही। तो वहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ती होगी, राइट? सर्दी बहुत पड़ती है। अब ये सर्दियाँ सितंबर में, अगस्त सितंबर में ठंड होना शुरू होती है रात को। उसके बाद आई थिंक सो द फर्स्ट लाइक एक्चुअल समर वी हैड वाज मिड मई और मिड जून। तो उसके दरमियान तो स्नो, पिछले साल तो स्नो में वी हैड वी आई मीन क्लासिफाइड इट नॉट एज a snowstorm, it was called snowmageddon. Snowmageddon. Yeah, because seriously, people were locked in their houses. They were stuck in their houses because the snow was up to their second floors. It was crazy. Exactly. There was a guy who even wrote a book like 2 weeks में उसने book भी रख ली कि how Newfoundland and it like helped each other. और वाकई मतलब है ना, I remember एक दिन मैं घर में बैठा हुआ तो I just had a random knock on the door. So like and it was ये नहीं था कि आर्मी वाले और पुलिस और एम्बुलेंस, it was just a normal like कहते हैं ना friendly neighborhood couple. They were wearing snowshoes and they were going to every house saying कि भाई हमारे पास we have long lasting food like canned food है and granola bars हैं. So if you guys need anything just ले लो हमसे. The other day I was like only I was passing the street तो एक post box के पास एक box पड़ा हुआ, उसमें थोड़ी सी sanitary के equipment और like just tools है, थोड़ा सा खाना, थोड़े से बच्चों का stuff. एंड लिखा हुआ कि जो भी जितना ज़रूरत है जो भी ज़रूरत है प्लीज टेक फ्रॉम हियर। तो दीज आर सम थिंग्स कि आप कभी, मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं एक वाइट कम्युनिटी में देखूंगा इतना, बिकॉज यू कैन से प्रोग्रामिंग भी है मूवीज वगैरह में देख देख के कि यहाँ पे लोग उतने सेंसिटिव नहीं होते, आप रोते रहोगे कोई पूछेगा नहीं आपको। दैट इज अ वेरी वेरी अनट्रू फैक्ट। ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लोग पीपल डू केयर, दे डोंट केयर दैट मच बट व्हेन दे केयर आपको काफी दे डू केयर अबाउट अ लॉट ऑफ। तो बल्कि मैं तो मामा से कहता हूँ ना, पूछती मौसम कैसा है, मैं कहता हूँ मस्त माहौल थे मिठे चौल, तो मतलब आज तो बहुत अच्छा मौसम है। फिर आगे से मौसम आज तो सावल वाला मौसम है, आज आगे से मौसम है, आज तो पकौड़ों वाला मौसम है। तो समर यहाँ पे अच्छी होती है, ऐसी गुजरती है। विंटर में आज कौन सा मौसम है, क्या मेरा दिल जा सुसाइड कर लूं भाई। कितनी इधर देखो बर्फ है, इधर देखो बर्फ है। तो मजे की बात है कि मेरे घर से ना 2 रास्ते में यूनिवर्सिटी के लिए, एक तरफ लंबा है एक तरफ छोटा है। तो छोटा वाला बैकयार्ड और बैकयार्ड के साथ ही बेसबॉल ग्राउंड है। सर्दियों में मुझे याद है स्नोमैगेडन हो चुका था और ना मैं देखा यार इतनी बर्फ नहीं लग रही। तो मैंने पहला पाँव रखा, सख्त हुआ, बर्फ बिल्कुल बेहतरीन हो गया। जब हाफ वे थ्रू द एक पाँव रखा यार, मैं अपने पेट तक अंदर चला गया बर्फ के अंदर। Really? Oh. And I was like, it could have been worse. I was like, अब मैं करूं क्या? Because literally your hands are stuck, your legs are stuck. आपको समझ नहीं आती करें क्या? Then I called a friend of mine. उसने अपना ट्रक लाया और उसने रस्सी फेंकी है। When I grabbed onto it, तो उसने मुझे खींच के निकाला। So that was a very कहते हैं ना एक नया एक्सपीरियंस, नया और अजीबोगरीब एक्सपीरियंस है जगह का। Yeah, it could have been even worse. You could have gone all the way down. Exactly. Yeah. Wow. The thing about Newfoundland is कि it's not a, you can say the Atlantic region of Canada ना, it's not a very rich region. यहाँ के लोगों का मसला ये कि the government tries people to stay but not a lot of opportunities because कितने लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। हाँ, इकोनॉमी कैसी है? जॉब्स वगैरह मेरे ख्याल में कम ही होंगी वहाँ पे। जॉब्स ज़रा कम है। दे हैड अ वेरी बूस्टिंग इकोनॉमी 2015 आई गेस। इनकी ऑयल मार्केट जा रही थी। देन इफ यू रिमेंबर एक बहुत बड़ा ऑयल मार्केट क्रैश आया था, उसमें मुझे याद है कतर को भी बहुत नुकसान हुआ था। तो उसके अंदर ना इनका भी नुकसान है। इन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए थे, पता नहीं कितने भी मल्टी मिलियन बट मिलियंस के हिसाब से, वो सारे कैंसिल करने पड़ गए बिकॉज ऑयल की रेवेन्यू इतनी नहीं रही थी। तो उसमें काफ़ी इनकी इकोनॉमी गिरी थी। बट देन दे गॉट बैकअप अगेन। सारी स्नोमैगेडन आ गया। इट वाज 1 week of no business but then again इतनी छोटी जगह के लिए 1 week of no business is still a very big thing. Then अभी स्नोमैगेडन से मुश्किल से रिकवर हुए थे। Then the COVID started और वो रहा 3-4 महीने। And how bad was COVID over there, by the way? COVID here was okayish. I think the maximum number of cases we had is 264. And इसमें से recently चार active cases हैं, वो भी they came out of the province and they are also normal as well. तो COVID didn't hit us that bad, but the economy को actually hit किया था. But then again, I would call him Sugar Daddy Trudeau. So he gave $2,000. It's called serve money. Right. So for 2-3 months you got $2,000. Right. Nice. So रज के उसको हमारे लोगों ने exploit किया। जिनको नहीं जरूरत थी उन्होंने भी लिया है। लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये ट्रूडो इज जस्ट लाइक वो पाकिस्तानी शादियों में वो नाश्ते वालों पे फेंक रहे थे पैसे ना, लाइक मने। Yeah, of course. Yeah, nobody would reject that, to be honest. Exactly. हमें भी यहाँ पे मिले हैं ट्रम्प की तरफ से।
लेकिन not सही that generous. थिंग इज आप लोगों का लोग भी इतने ज्यादा हैं. Yeah, यहाँ पे structure काफ़ी different है. So, but it's all right. I mean, you can't. I mean, a lot of people have lost their jobs, so I can't complain on their behalf. To be honest, हम तो अल्लाह का शुक्र है मेरी job तो काफ़ी secure रही है throughout the pandemic so far. नहीं, actually the thing is even worse in the Middle East, because मेरे dad के office में I remember he's in Al Jazeera, right? So and he works in a proxy channel that's called Bein Sports that shows like European football leagues and everything. तो मेरे बाबा के ऑफिस में आई थिंक सो देयर वर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज एंड नाउ देयर ओनली लाइक जस्ट अ हैंडफुल ऑफ देम. लाइक एक दिन में फारिग किया. मेरे बाबा के भाई नहीं है तो ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर हिज बेस्ट फ्रेंड्स. तो मैं उन सबको चाचू बोलता हूँ यार. 3-4 चाचू एक साथ कतर से निकल गए. और सिर्फ मेरे बाबा के ऑफिस में नहीं, कतर पेट्रोलियम, कतर गैस, कतर इलेक्ट्रिक, हर जगह जो है ना मसला यह है कि उन्होंने बस एक ईमेल भेजी है कि यू आर फायर्ड, बट कहते कहीं पे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि आप फायरिंग है या वी आर लेटिंग यू गो. बस कहते हैं यार इतना लंबी चौड़ी ना 2 पेज के पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि आप फायरिंग है, लेकिन कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया क्यों और कैसे. तो देन दे गिव देम लाइक 2 महीने की सेवरेंस पैकेज एंड 2 months टू लीव कतार. एंड द प्रॉब्लम अब मेन पता है किन लोगों के लिए आता है. इस तरह मेरे जाने वाले अंकल हैं, he has taken उनके ऊपर लोन है अबाउट 150,000 रियाल, दैट्स पाकिस्तानी 70 to 80 लाख रुपीस आई थिंक. सो ऐसे इतना ही करीब होगा इतना इसके. तो अब उन लोगों के लिए मसला है कि 2 महीने में हाउ दे कैन दे रिकवर, और कुछ लोगों के इससे भी ज्यादा लोन है. तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस उन लोगों के लिए. एंड आई रियली डोंट नो कि कतर का क्या प्लान है उसको डील करने के लिए. बिकॉज मसला ये है कि वन दे वोंट लेट देम आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द लोन. And second thing is, if they don't, अगर suppose वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, they cannot go back to Qatar, और या वो किसी तरह भाग आते हैं कतार से, then they will be blacklisted, and not just in Qatar, पूरे GCC में. That means Saudi, Dubai, Qatar, UAE, Oman, Bahrain. That's it. You basically can't go anywhere in the Middle East. Exactly. फिर आप सोच लो आप उम्रा करने के लिए नहीं जा सकते दोबारा, सऊदी भी नहीं जा सकोगे. So इसलिए most of the people like who are trying to leave Qatar right now, like especially Pakistanis and everything, they want कि यार हमारा सारा स्कोर सेटल होके यहाँ से जाए ताकि हम आराम से दरवाजा खुला एटलीस्ट एग्जैक्टली दरवाजा खुला, हम वापस अगर अलग करता है तो वापस तो आ सके. तो द मोस्ट सिक्योर जॉब राइट नाउ जो पाकिस्तानीज कर रहे हैं वहाँ पे इज इन द आर्मी एंड इन द पुलिस. बिकॉज कतर की 90% पुलिस इज पाकिस्तानी एंड 90% आर्मी इज पाकिस्तानी. Basically, story is कि in the 1970s when Qatar used to have wars with Bahrain and everything, तो इनके अपने लोग तो लड़ने वाले हैं नहीं. तो उन्होंने कहा यार चलो वो कहते हैं सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून हायर पे बुला लो. तो they used to call पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी, जहाँ भी डॉलर फेंको हम तैयार हैं काम करने को. तो इन्होंने बुला लिए और वो जंग हुई. तो उस वक्त कतर की आर्मी में देयर वर फिलिपिनोज, इंडियंस एंड पाकिस्तानी. तो हुआ ये कि जब जंग हुई then the Bahrain is an island that's Gulf के बिल्कुल middle में. It has no land connections. Just there's only one land connection, that's to Saudi, and that's a 26-kilometer long bridge. वो भी recently बना है. The war was in 1970s and 80s. तो पठान जो अब हमारे यहाँ गया भी कौन यहाँ से पाकिस्तान से बलोची और पठान थे सारे. उन लोगों ने जहाँ फिलिपिनोज और कतरी भाग गए, फिलिपिनो कतरीज और इंडियन भाग गए, वहाँ पठान बहरीन जाके बंदे मार के आए थे. मतलब अच्छा खासा एक वो सेलिंग डिस्टेंस है, वहां जाके उनकी बीचेस पे लैंड करके वहां बंदे मारे उन्होंने. तो वो जो पठान थे ना जो उधर गए थे, उनको तो उन्होंने कहा भाई इनको तो 2 नेशनैलिटी और 2 स्टार्स कराएं, मतलब दे आर ऑफिसर्स भी कायदा. नहीं तो कतर और पुलिस और आर्मी में एज अ नॉन रेजिडेंट कतारी आप एक एनसीओ के ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, यानी सार्जेंट, मेजर सार्जेंट इतना कह सकते हो आप, मेजर कैप्टन ये नहीं बन सकते आप. तो उनको, लेकिन वो एक एक्सेप्शन थी कि उन्होंने कहा भाई इनको तो तुम लोग जनरल क्या जो कुछ बनाने बनाओ, इनको नेशनैलिटीज दो, इनको इधर रखो, लॉयल लोग हैं. और बल्कि इनकी जो पठान है ना, बल्कि पठानों को यहाँ से हायर करना शुरू कर दो आर्मी के लिए कि लॉयल कौम है. अच्छा, मैं कभी मिडिल ईस्ट में रहा नहीं, तो मुझे अब इतना पता नहीं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज एज मच. अभी कल मैं एक और बंदे के साथ रिकॉर्ड कर रहा था और वो सऊदी और अरब में रह के आया है. तो वो क्या बात कर रहा था थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, लाइक पाकिस्तानी. नहीं, अगर आप मैं रैंक करना शुरू करूँ ना, तो नंबर 1 पे अगर रेसिस्ट, तो अरबियों के अंदर ना ट्राइबलिज्म, रेसिज्म बहुत सेंचुरी से है और इस चीज को निकालना बहुत मुश्किल है. क्यों? मतलब हर मुल्क में है ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क में है दूसरे में नहीं है. इट्स बेसिकली सऊदी. मैं रेट करना शुरू करूँ ना, तो फर्स्ट वन पे कुवैती आर दी मोस्ट रेसिस्ट. कुवैती लोग,
मतलब मुझे याद है कि रिसेंटली पाकिस्तान में था, मैं आई यूज्ड टू सर्च अ लॉट ऑन डार्क नेट्स, तो उसके अंदर वीडियोस आती थी कि मतलब लिटरली अपने जो उनके खुदाम कहते हैं, द पीपल हु मतलब दे माइट बी एक्सपेक्ट्रिएट्स, नॉर्मली दे आर नॉट कुवैतीज पीपल, फिलिपिनोज हो गए, इंटरनेशनल मलेशियंस, ये मेड बन के आते हैं थ्रू एजेंसीज, बेचारों के साथ बहुत बुरा होता है, उनको मार रहे हैं। एक तो सीन मुझे याद है कि वो औरत मेड थी, वो खिड़की से गिर रही है, शी इज होल्डिंग ऑन टू अ लैच एंड द ओनर शी इज मेकिंग फन ऑफ हर एंड मेकिंग अ वीडियो। वो औरत गिर के मर गई एंड शी मेड अ वीडियो एंड शी वाज जस्ट लाफिंग। फिर रिसेंटली दे हैड अ लॉ, तो बेसिकली द लॉ इन पूरे खलीज में है कि व्हेन यू कम टू कतर, सपोज मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा गए हैं, सो हिज स्पॉन्सर इज हिज कंपनी, इट्स वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशन भी ली हुई है, इट्स ऑल्सो पेइंग द गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ कि जी ये बंदा मेरा है, इसको मैंने रखा हुआ है एंड आई एम पेइंग फॉर इट। लेकिन अगर मैं किसी के पास सपोज मैंने एक शेख के साथ बिजनेस भी करना है, तो वो आपका यूजली पासपोर्ट रख लेते हैं आपका, कि आप उनकी कफील, एक केयर टेकर, तो वो आप उनकी इजाज़त के बगैर आप कतर छोड़ भी नहीं सकते या मिडिल ईस्ट छोड़ भी नहीं सकते। तो कुवैत में ये लॉ पास हुआ कि आपको अब इजाज़त लेने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर कफीलों से। तो आउटरीच हो गया। एक बाकायदा जो उनकी ब्यूटी ब्लॉगर थी, उसने कहती कि भाई अगर मेरी मेड मेरी इजाज़त के बगैर मुल्क छोड़ के जा सकती है, तो इसमें सिक्योरिटी का है कि ये तो खुदाम है, पैसे देते हैं, गुलाम कौम है, ये स्लेव्स हैं हमारे। बाकायदा उसने ऑनलाइन जाके बोला, और कुवैत के अंदर से सपोर्ट आई है उसमें। तो कुवैतीज आर द मोस्ट रेसिस्ट। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब है, और अगेन ट्राइबलिज्म फ्यूडलिज्म बहुत है वहाँ पे। जितनी भी वेस्टर्न हो जाए, लेकिन इनका जो अपना फैमिली सेटअप होता है ना विद इन द फैमिली, दैट स्टिल बेस्ड ऑन दोस ट्राइबल सिस्टम्स। कतर के अंदर बताते नहीं है, बट स्टिल ऑनर किलिंग्स भी होती हैं। रिसेंटली मेरी दोस्त ने बताया मुझे, कहती कि एक लड़का अल्जेरियन था, उसको एक कतरी लड़की पसंद आ गई, कतरी लड़के को भी वो लड़का पसंद आ गया। अब एक कतरी लड़का था, उसने कहा भाई ये क्या बात है, कतरी लड़की मुझे पसंद नहीं कर रही, तो अल्जेरियन लड़के को पसंद कर रही है। उसने अल्जेरियन लड़की की पूरी फैमिली को डिपोर्ट करवा दिया। अच्छा, तो ये भी है। यूएई में भी सेम। कतर के अंदर दो और सीन बताता हूँ आपको कि द कंपनी नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, द नेशनल की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फैंस वगैरह, इसको इस्टेब्लिश किया था पाकिस्तानी ने। हis name was सेठ सदीक, कराची के थे वो, और उनको भी एंड में बड़ा बदनाम करके निकाला। then there was another guy, I think he was कराची as well। तो जिस तरह ब्रांड्स होते हैं, मतलब एक फैमिली नेम होता है, जिस तरह टाटाज एंड एवरीथिंग, तो कतर में था अल मुफ्ताज के नाम से ना, तो उस बंदे ने पूरा एस्टैब्लिश किया उस चेन को। तो जो करंट शेख था, उसका बिजनेस पार्टनर है, ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, बेहतरीन काम होता रहा। बट द मोमेंट वो शेख मरा, उसके बच्चे आए, उन्होंने कोई रिगार्ड नहीं किया, ऑफिस सर्विसेज हैं, लिटरली ब्लैकलिस्ट सर्विस को वापस घर भेज दिया। वाओ। तो अच्छा, नंबर 1 कुवैत है, नंबर 2 is सऊदी अरब, एंड सऊदी है थर्ड पे द पीपल ऑफ दुबई, फोर्थ पे बहरीनी, फिफ्थ पे कतारीज, एंड सिक्स्थ पे द लीस्ट रेसिस्ट ऑफ ऑल आर द ओमानी पीपल एंड द नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इन द खलीज। टू बी ऑनेस्ट, उनके एयरपोर्ट पे लैंड करते हो एंड दे आर लाइक यू नो वेलकम, मरहबा, आपको लगता है कि ओमानी पीपल वांट यू इन देयर कंट्री। यूएई में तो माइंड से जो पुरानी जनरेशन है, जो कि आपके बाबा की हो गई या मेरे माँ बाबा की हो गई, उन कतारीज को ना वो एक ट्रेडिशनल घरानों में पले हुए हैं, तो उनमें से कुछ को अंदाजा है कि यू नो अगर ये लोग आए हैं यहाँ पे हमारे मुल्क में कमाने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी इनको देना। मेरे बाबा के ऑफिस में जब सपोज निकालने लगे थे लोगों को, तो उनके सीईओ कतारी, उसने कहा नहीं, मैं किसी को निकालूंगा नहीं, हाँ खुद छोड़ के जाना तो चले जाओ, मैं निकालने किसी को नहीं वाला, क्योंकि कमाने आए हुए कमा के खाओ। अब वो माइंडसेट जो है ना, वो जनरेशन में था जो कि आपकी हो गई या मेरे बाबा की हो गई या इस तरह की हो गई। जो करंट जो जनरेशन है ना, उनके जो नज़र में उन्होंने ना कभी स्ट्रगल देखी है, ना कुछ और देखा है, वो वही born with a silver spoon in their mouth, और they literally call you Hindi means slave, हिंद means पाकिस्तानी, बंगाली, कतरी, और पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन means slave। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तुमने जो की है अभी, कि पिछली जनरेशन जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आमतौर पे मैंने समझा उलट होता है, यहाँ पे उलट होता है कि यंगर जनरेशन इज यूजुअली अ लिटिल बिट मोर एक्सेप्टिंग। Exactly right. I mean like I remember there's a Pathan Babaji who lives near my house and he's single। उन कहते हैं पाकिस्तानी की फैमिली है, कहते हैं कि बेटा 40 साल में यहाँ गुजार चुका, तो मैं लगता है मैं वापस जाके फिट हो सकता हूँ। कहते हैं मेरे अपने बच्चे मुझे रखेंगे, कहते हैं, और वो एक ऐसी कहते हैं कि ऐसी रियलिटी से मुझे फेस करना पड़ रहा है। कहते हैं मुझे उनसे शिकायत कोई नहीं, उनसे मुझे कहते हैं उनके लिए तो मैं यहाँ पे आया था, लेकिन अब मैं उन पे बर्डन नहीं बनना चाहता। तो predominantly they are racist, their policies are based on their के
फायदा उनके ओन लोगों अपने लोगों को पहुंचे, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी लेकिन हैं। एक्सेप्शंस भी बनाते हैं, मेरे सुनने में जो आया एक्सेप्शंस बनाते हैं, लेकिन सिर्फ लाइक वेस्टर्न कंट्रीज के लिए. एग्जैक्टली, Muslim countries, basically darker skin countries, those are the ones they discriminate against. That's what I've heard. ट्रू. लाइक अगर सपोज मेरे बाबा का मैं अपने बाबा की एग्जांपल से देता हूँ, बिकॉज़ ही इज द पर्सन लाइक मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन आई हैव मेट इन कतर, राइट? तो सपोज ही इज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, वो लड़ भी नहीं सकता. अब उन्होंने लड़ना है, उन्होंने पुलिस ने रेस्ट करके लेके जाना कि भाई ये तो प्रोटेस्ट किया इसने. अब अगर मैं कनेडियन हूँ ना, और मैं पाकिस्तानी कनेडियन हूँ, ब्राउन स्किन है लेकिन पासपोर्ट कनेडियन है, मैंने सिंपल काम करना है, अपने एम्बेसी को फोन करना है, मैंने एक्सप्लेनेशन सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, और मेरे ख्याल से एम्बेसी है भी अबू धाबी में, इट्स नॉट इन कतार. जो भी है वो कोऑर्डिनेट करेगा बाबा के ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्ट्री, जिससे भी करना है. वो पूरा मतलब एक अच्छा बड़ा सा सेवरेंस पैकेज भी देंगे, इज्जत भी देंगे, और ये भी हो सकता है कि जी अच्छा आपने अगर रहना तो रहें, हम आपको निकालेंगे भी नहीं, आपने जब मर्जी जाना है आप यहाँ से चले जाएं. तो आप यार फिलिपिनोज की हमसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है इन कतर. अच्छा, वाह. फिलिपिनोज की ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है हमसे. मतलब मुझे याद पड़ता है कि देयर वाज दिस केस के कोई गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें फिलिपिनोज खड़े हुए थे, दोस्त का इंतजार कर रहे थे. तो एक शेख आया, उस यंग सा लड़का था, उसने गाड़ी मार दी, वो जल के मर गए बेचारे सारे. तो फिलिपीन एम्बेसी ने कहा ऐसी की तैसी, जब तक याद हो तुम सारा खून बहा हो, वो ब्लड मनी दो सबका, याद हो जस्टिस दो हमें. तो उन्होंने कहा जी तो लड़का पागल है एंड एवरीथिंग. उन्होंने कहा नहीं. सेम एज द केस, एक और मर्डर केस था, एक कतरी लड़का था, एंड ही वेंट टू एन इंटरनेशनल स्कूल. तो इंटरनेशनल स्कूल में मोस्टली टीचर्स आर वाइट और अरब्स हु आर वाइट, लाइक मोस्ट ऑफ देम हैव अ यूरोपियन और अमेरिकन पासपोर्ट. तो ही वाज हैविंग सम एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप्स विद अ टीचर ओवर देयर, वो इंग्लैंड की थी. वन डे वो उसको लेके कहा कि आई एम मैम, हम आपको सफारी पे ले जाते हैं. वो था और 2-3 लड़के और थे. वो सफारी पे लेके गए, फिर दे वेंट, मतलब खाना शाना खाया. अब कतरियों को लगता है कि जी हर लड़की उनकी पैसे में मरती है, तो एक लड़की को घुमा फिरा लिया, खाना खिला लिया, तो मीन्स के नाउ शी वोंट ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग. तो उसने एग्जैक्टली, तो अब उसने कुछ एडवांसमेंट्स करने की कोशिश, मतलब काम करने की कोशिश की, तो टीचर ने मना कर दिया. उसका बेचारी का रेप भी हुआ, जबरदस्ती की, एंड दे किल्ड हर एंड बर्न्ड हर ओवर देयर, लाइक जला दिया. फिर सुना है कि अगले दिन कोई बद्दू कहते हैं उनको, जो कैटल फार्मर्स होते हैं वहाँ पे, तो वो कोई अपना हर्ड लेके कहीं जा रहा था, तो उसने कहीं देखा कि इस तरह ये जड़ी हुई जगह बोन्स पड़ी हुई हैं. तो देन ही कॉल्ड द पुलिस, देन आइडेंटिफिकेशन हैपेंड. देन उसकी लड़की की अम्मी आ गई, दो गॉट मर्डर्ड, एंड शी वाज लाइक जब तक इस बंदे को जेल या सजाए मौत नहीं होती, आई एम नॉट लिविंग दिस कंट्री. एंड बिकॉज़ शी वाज फ्रॉम इंग्लैंड, द गाय वेंट टू जेल. बट ये वही कतरी है, पाकिस्तानी इंडियन होता, उन्होंने रख के 2 चपेटे मारी, तो बाहर निकाल देना था. कोई केस वगैरह नहीं बनना था. कोई केस वगैरह नहीं बनना था. हाँ, मर्डर किया होता फिर बहुत बड़ा केस बनना था. I mean, यहाँ पे in light of the recent, for example, there's a lot of protests going on here too. मैं कई बार अपने मैंने ये स्टोरी भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे, लोगों को रिमाइंड करने के लिए, हमारे मुसलमान लोग जो हैं, पाकिस्तानी लोग, कि यार ठीक है ये कॉज बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी देखें कि हमारे मुल्कों में कितने मसले हैं, तो इसको प्रायोरिटाइज करना होता है. यहाँ पे मसले हो रहे हैं, चलो ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में, कनाडा में हो ज़रूर है, लेकिन ऐसे एंगल से देखना कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यू बेसिकली जस्ट मूव्ड हियर रिसेंटली, और हमारे मुल्कों में कितने मसले हैं, हम जिन मसलों को छोड़ के भाग के यहाँ पे आ गए हैं, आप उनको भी रियलाइज़ करें, पहले आप अपने मुल्कों में भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें. That's my perspective. I was talking with Nana the other day, and I was like, नाना वो पता है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में है ना, सपोज इलिटरेसी होगी, पॉवर्टी हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने कहा वो सारी यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं. हम कहते हैं ना मसाइल, रेसिज्म और पॉवर्टी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लोग गंदे हैं, रिश्वत हो गई, मैंने कहा ये सारी यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, बट वो उस लेवल पे इंसानी जिंदगी को मुतासर नहीं करती हैं कि इंसानी जिंदगी डिसरप्ट ही हो जाए बिल्कुल के. तो वो इसलिए इतनी हाईलाइट होती नहीं यहाँ पे. डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे होती है, पुलिस आती है, केस होता है, डिवोर्स होती है. मतलब इट्स नॉट इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के. नहीं जी तुम लोग बच्चा कर लो, सही हो जाएगा, ये कर लो, ठीक हो जाएगा, इस बाबे के पास जाओ, ठीक हो जाएगा, फिर 6-7 साल तो डिवोर्स में लग जाते हैं सिर्फ. तो मैं कही दिस इज द रीजन. मैं कही यहाँ मसले होते हैं, बट दे गेट सॉल्व वेरी क्विकली. और अगर होते भी हैं तो पीपल डोंट केयर अबाउट इट दैट मच कि उसको हाईलाइट करें. हाँ, अब हमारे मुल्क की साइड पर हो रहे तो वो उसको हाईलाइट कर देते, ओ माय गॉड डोमेस्टिक वायलेंस ये है. जहाँ मैं मानता हूँ बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर हमें ब्लेम करना और ये प्रिटेंड करना कि ना नहीं एग्जिस्ट करता, दैट्स अ वेरी बैड थिंग. मुझे याद पड़ता है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की, शी वाज प्रोटेस्टिंग फॉर वीगनिज्म, तो उस कहती है कि डू यू ऑल नो दैट द मोमेंट दीज चिकन्स एंड टर्कीज आर बॉर्न दे आर जस्ट यूज्ड फॉर फूड एंड दे हैव नो अदर पर्पस.
मैं उठा and I was like, I don't see them having aspirations to become doctors and lawyers, so like I don't see like why should we eat them? ज़्यादा ही होते जाएंगे. So and I swear to God मुझे इस गैदरिंग में से निकाल, इतनी लान तान की गैदरिंग से निकाल दिया मुझे. लेकिन वही बात आती है ना, यहाँ पे इतने सारे पर्सपेक्टिव्स आ गए, इतने सारे लोग इतनी अलग सोचों से, वो ठीक है. और इनजस्टिस भी यहाँ पे होती है, जिसने तुमने बोला यहाँ पे ज़रूर होती है इनजस्टिस, लेकिन कम से कम आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं. आप यू हैव द राइट टू डू दैट एंड यू हैव द राइट टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड देन थिंग्स गेट करेक्टेड. इवन द LGBT कम्युनिटी आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट. कोई मुझसे पूछता है कि हाँ भाई तुम तो उधर हो, ये गंदे काम होते हैं. मैं कभी देखो, आई गेट इट, इट्स रॉन्ग, हमारे मजहब में भी रॉन्ग है, बट यार टू बी ऑनेस्ट मतलब नॉर्मल बंदे ने मेरा साथ छोड़ा है, तो वहाँ एक LGBT वाले दोस्त ही मेरा एंड तक साथ दिया, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं आपकी. मुझमें हंस इस बात पर आता है यहाँ पे. उस यूनिवर्सिटी में किसी लड़की से मेरा कहती है, उसने कहा बड़ा अजीब सा ड्रेसअप किया. तो मैंने कहा आई प्रिज्यूम यू आर वन ऑफ दी सेक्सुअलिटीज का. उस दिन इवेंट हो रहा था हमारी यूनिवर्सिटी में. कहती या, अब उसने कोई नाम लिया पता नहीं कौन सा फाइल. सो कहती कि आई एम अ ह्यूमन बट आइडेंटिफाई एज अ ड्रैगन. मैंने कहा भाई कौन सी ड्रग करके आई हो तुम अभी. Yeah. I mean, there was an article, I don't know if it was a hoax or not, but I saw this, कि एक लड़की समझ रही थी कि मैं वो कुत्ती है. She was a dog. So she would she would actually live her life like that. She would dress up as a dog, eat dog food. There's like pictures of her and everything. Yeah, I think I have seen that. I think I've seen the one with Norway की थी and she likes to be a cat. Something like that, yeah. Cat वाली यहाँ तो बहुत है. Yeah. There's a lot of cat. I don't know if you're into anime, but there's a lot of cosplay. Yeah, वो cosplay Yeah, and girls dressing everything. up as cats. So, लेकिन वो ज़्यादा शौकिया करती हैं. यार एनिमे जो है ना, पाकिस्तानी लड़कियों का, एक पाकिस्तानी लड़कों का सोलेस, you can say that only, क्योंकि असल जिंदगी में लड़की मिलती ही नहीं है हमें. Yeah. ये देखिए, ये मेरा मसला है. मैं बिल्कुल डरे रहता हूँ यार. क्या बात है. It's good. This is good discussion. लेकिन मैं जो पॉइंट पर कहने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि like you said, LGBT वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आपके बिलीव्स के खिलाफ है, लेकिन the beauty of living out here is usually people leave you alone. If you have the right to live, right, आप बाहर हिजाब पहन के जा सकते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो बाकियों को भी वो हक है. Exactly. मैं कई बार सोचता हूँ कि I should start vlogging and everything. फिर मुझे वो कॉम्प्लेक्स, आई हैव द कॉन्फिडेंस, मुझे मेरा जो लोग क्या कहेंगे ना, वो ऐसा री इन्फोर्स हुआ है मेरे अंदर 22 साल से पाकिस्तान में, मतलब इतना पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहा हूँ, ये वो बड़ा ना सोचता हूँ. तो मैं कहा चलो अच्छा यार शुरू करते हैं राइटिंग से, बिकॉज हिस्ट्री अच्छी लगती है. तो लेट्स मैं वो बंदा हूँ कि ना मैं आई एम अ रियलिस्ट में कहता हूँ. अगर जहाँ मुसलमानों ने फतुहात भी किए हैं ना, दे हैव कॉन्कर्ड प्लेसेस, वहाँ वो उतनी तरह बुरी तरह हारे भी हैं, उन्होंने उस तरह स्टूपिड मिस्टेक्स भी किए हैं, और ऐसे लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं कि मतलब लिटरली पूरा रमज़ान मेरा ईमान डैंगल होता रहा है. जब मैं आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर के डिस्प्यूट्स पढ़ता रहा हूँ. That's a very interesting subject too, right? Exactly. अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना है ना, तो there's a देखो सुनो जानो चैनल ऑन YouTube. अगर ये लिसनर्स को भी पता चलना चाहिए. वैसे the thing about that show is जहाँ उन्होंने हमारी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है, वहाँ उन्होंने हमारी बुरी चीज़ों को भी हाईलाइट किया है. हमारे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो मतलब पीते पिलाते भी थे, ऑर्जीज भी होती थी, ये चीज़ें पाकिस्तानी को बताना शुरू हो तो आग लग जाती है उनको. मैंने एक दफ़ा अभी रिसेंटली मैंने उस पर किया, मुझे बुरा लगा जब हकिया सोफिया दे कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क. मैंने कहा दिस इज़ नॉट राइट. द थिंग इज इतने ऐसे मैं आई हैव बीन टू टर्की, सेकुलरिज्म गोज ओवर देयर. आई लव द सिस्टम ऑफ सेकुलरिज्म, बिकॉज ना मुसलमान खाम का क्रिश्चियन को तंग कर रहे हैं. हमारे मुल्क में तो क्रिश्चियन बेचारा सांस ले ले, उसको कुछ मारना पीटना और खिलाफ शुरू हो जाते हैं, तो वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा. बल्कि मुझे टर्की का लगा कि मैं नमाज पढ़ने गया, उसने कहा अजान होगी नमाज नहीं होगी. मैंने क्यों? कहता है हमारे इमाम की डाइवोर्स होगी, जब तक वो डिप्रेशन में है इमाम मस्जिद में नहीं है. मैंने कहा वाह क्या रीज़न है. लेकिन कहा यही बात पाकिस्तान में होती तो इमाम सब अभी पिट रहे होते. तो आ क्या कि भाई तुम्हें क्या पता, पहले मस्जिद थी ये, फिर इसको ये अतातुर्क आया, उसने म्यूजियम बना दिया. मैं कहा भाई ये हगिया सोफिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 300 साल पहले का बनना शुरू हुआ था. तो अब वही बात है, मैं कहता हूँ भाई हिस्ट्री डिस्कस करनी है तो बड़ा तैयार होकर आया करो. मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें. तो मैंने कहा इस तरह बना. तो मुझे बताओ कि कैसे मस्जिद थी पहले. उनकी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि हमारी काफ़ी मस्जिदें भी उन्होंने कन्वर्ट की हुई हैं. एग्जैक्टली. आगे से रिप्लाई आया मुझे, बेटा एर्दोगान कहते हैं तैयब एर्दोगान जो कर रहे हैं ना उसको पता है, तुम चुप रहो. मैंने कहा मुझे पता है वो क्या कर रहा है. वो इट्स अ कंप्लीटली पॉलिटिकल मूव.
मैंने कहा आई हैव बीन टू हगिया सोफिया, उसके सामने सुल्तान अहमद मॉस्क है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मॉस्क इन टर्की। आपकी स्टूडेंट FSC की बुक में जिक्र है उसका, इंग्लिश की बुक में है, मैं चैप्टर, मैंने कहा वो तुम्हारा एक ग्रैंड चीज सामने है। मैंने कहा उसके आसपास छोटी 7 हिल्स हैं इस्तांबुल में, जो मैंने मतलब ये मेरे काउंट किया था जिस उस व्यू में मैं था, 7 हिल्स थी और 7 के ऊपर ना वो एक सिमिलर आर्किटेक्चर टाइप की मस्जिद थी। मैंने उसके बाद मैंने कहा मज़ोलियम्स, उसके इर्द गिर्द मज़ोलियम्स अलग हैं और छोटी मोटी मसाजिद उससे भी ज्यादा है। तो मैंने कहा जब इतनी ज्यादा मस्जिद, और मैंने कहा वो टर्किश लोग नमाज भी नहीं पढ़ते ये तो तुम लोग इससे जमात कैसे पूरी करोगे इतनी बड़ी मस्जिद में? एग्जैक्टली सही बात है। वहां पे अगर जुम्मा होता है ना तो मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट, लिटरली टर्किश जो नई जनरेशन है ये, अगर आप मैं टर्की 5 शहरों में घूमा हूँ। आई वेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एज यू गो नॉर्थ टू साउथ रिलीजन का इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता रहता है। मतलब मैंने लिटरली लोगों को अल्कोहल पकड़ के मस्जिद में जाते हुए देखा है मैंने, जो अंतालिया रीजन था ना, और मस्जिद से बाहर निकल के ड्रिंक करना इट्स वेरी कॉमन, मतलब अल्कोहल तो चलता है वहाँ पे। फिर मैं गया कपटोचिया, वहाँ थोड़ा कम इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा हुआ कि औरतें पर्दा थी थोड़ी सी। फिर मैं गया कोनिया, दैट्स द हार्ट ऑफ मौलाना रूमी, तो उधर तो बहुत ज्यादा इस चीज का रुझान था, रिलीजन वगैरह का, सूफीज्म का। फिर आई वेंट टू अनकरा। अनकरा इज अ वेरी मॉडर्न, उधर मैंने इतना मजहब नहीं देखा, बिकॉज अनकरा इज अ मॉडर्न प्लेस, यू कैन से उधर इतनी हिस्टोरिक जगह भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर अतातुर्क सोन मज़ोलियम। जब मैं इस्तांबुल गया ना तो इस्तांबुल में आई सॉ रिलीजन लाइक अ प्रॉपर, मैं कहूँगा ना इस्लाम। मैंने बापर्दा खवातीन भी देखी, मैंने मदारिस भी देखे, मैंने लोग भी देखे टोपियां पहनी हुई, तस्मियां पहनी हुई लोगों ने, तो इस तरह उनका एक वो इंक्रीज होता है। लेकिन फिर भी आई डोंट सी देम एज द मोस्ट रिलीजियस पीपल इन द वर्ल्ड के मैं कहूँ क्लीके में। क्या अभी रिसेंटली एर्दोगान, मसला ये है कि जो लास्ट इलेक्शंस थे आई थिंक उसमें एर्दोगान अपनी सीट से हार गया था, तो राइट नाउ ही नीड्स द सेंटिमेंटल वैल्यूज ऑफ पीपल। उसका बेस्ट क्या तरीका है मुसलमानों के लिए, एक कोई भी काम कर दो, मस्जिद बना दो, खोल दो, कंकर कर दो, इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर दो कि भाई हम मुसलमान कौम साथ है। और दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स हमारी जो मुसलमान उम्मत का एज अ होल है कि हम बहुत सेंटिमेंटल हैं, कभी सब्र नहीं करते, बस अल्लाह के नाम आता रहता है। तो अल्लाह ताला ने भी, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा मजे का वाकया है ना कि वो अपने खैमे में बैठा हुआ है, उसने रिसेंटली जेरूसलम पे हमला करना था, ये करने वाला था अभी। तो उसको किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम क्या इतनी बड़ी क्या चीज होगी, तुम जेरूसलम फतह कर लोगे, तुमसे पहले इतने सारे फाते आए हैं, वो कुछ करनी है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू कैन डू? कहता है आई थिंक गॉड विल्स इट नाउ दैट जेरूसलम शुड बी कंकर्ड बाय माय हैंड। सेकंड, I have prepared for it. I have prepared in numbers. I have prepared in everything. I have prepared in patience. मतलब क्या था, कहते हैं कि भाई मैं पूरा रेडीनेस होके आ रहा हूँ, मैं एमी उठ के नहीं आ गया, जलाल में उठ के नहीं आया, मैंने सब्र किया है, मैंने पेशेंस किया है। I have the army for it. I have the equipment for it. And now that when God has decided, अब कहता है अब जो अगर मुझे फील होता है ना कि God decided कि जेरूसलम मेरे हाथों फतह हो, it's because के मुझे मेरी रेडीनेस का पता है, आई नो आई एम रेडी, आई नो आई एम रेडी टू फेस दिस, बट गोइंग ब्लेटेंटली इनटू वॉर के बिल्कुल ही मरने जा रहा हूं मैं विदाउट एनी सपोर्ट, दैट्स तो फूलिशनेस है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना भी, मुसलमान को इतना सोचने की ताकत दी है, अंडर द पेन ऑफ डेथ आप अपने आप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर सकते हो। जब इतनी छूट है तो हाउ कैन इट बी कि आप इतना गंदा सिस्टम लेकर चल रहे हो जिहाद का, एक जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट सिस्टम को रोमांटिसाइज किया हुआ है ना कि जंगे बहुत मजा आता है और जिहाद बड़ा एक मैं मानता हूँ, मैं एक बड़ा डर लगता है कि लोग समझते हैं कि बहुत एंटी मुस्लिम हूँ। मैं कहता हूँ वो बहुत चीज है, बट उनके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप मुसलमान को मत देखो, आप इस्लाम को देखो। मुसलमान तो बिगड़ चुका है काफी अरसे से। एग्जैक्टली तो इस्लाम के अंदर भी उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर चीज के। तो उसके साथ देखा जाए तो जिहाद की भी काफी हैं, और अगर आप पे लागू नहीं होता तो आप नहीं जा सकते। सपोज नंबर 1 इज आप पे उधार ना हो, सेकंड नंबर 2 इज आपकी फैमिली, ये ना हो कि आपकी फैमिली पे मतलब आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, ये सपोज आपकी बीवी बच्चे आपके डिपेंडेंट है, आप जहाज पे निकल जाओ, इवन दैट इज नॉट अलाउड। उनका कौन संभालेगा? आजकल मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा है ना उम्मत का, वो ये है कि इस्लाम की डेफिनेशन डिफाइन करना इस्लाम को, इस्लाम के क्राइटेरिया को, क्योंकि कोई सारे एक सेम पेज पे है ही नहीं, हमारे इतने सारे सेक्ट शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली आप हर मुल्क के देखें, हर मुल्क की शरीयत एक अलग किस्म की इम्प्लीमेंटेशन है, हर मुल्क ने अपनी इंटरप्रिटेशन लगाई है। मुझे सबसे मजे का जब लगता है मुझे न्यूफाउंडलैंड का एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गोरों से मिला हूँ यहाँ पे who have become Muslim और कन्वर्टेड in the or are in the on the way or are thinking about it। और मुझे सबसे मजे का लगता है इन लोगों के बारे में कि जब एक गोरा मुसलमान होता है ना तो इन लोगों के लिए there is no gray area, या तो हराम है या तो हलाल है, there is no gray in between। हमारा मुसलमानों का ये है कि हमारे लिए वो ग्रे एरिया इतना बड़ा है कि हमारे लिए हराम हलाल अब वो कंसेप्ट बहुत छोटे रह गए हैं। पाकिस्तान में देख लो बहुत कम लोग ये तमीज करते हैं कि भाई हमारी कमाई हराम की है हलाल की है।
यहाँ पे देख लो तो लोग बड़ा कम तमीज़ करते हैं कि ये जो हम खा रहे हैं ये मतलब प्रिपेयर्ड मीट है, ये हराम हलाल है। हमने उस ग्रे एरिया को इतना एक्सपैंड कर लिया है ना कि अब हमें वो नॉर्मल लगना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैंने गोरों को देखा है, वो उस ग्रे एरिया को एग्जिस्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं या तो हराम है या तो हलाल है। आई गेस इट्स कस वो अपनी जिंदगी में सारे बुरे काम कर चुके होते हैं एक दफ़ा इतने ज़्यादा, कहते हैं यार बस अब हमें अब और नहीं करना। हम क्योंकि हमें शुरू से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और मैं अपनी मेंटालिटी कहता हूँ कि जी करके सीखना है। एक मुझे याद है तुम बात कर रहे थे ना कि सेंटिमेंटल हैं काफ़ी हमारे लोग, तो ये मुझे एक बात याद आ रही थी। मेरे अबू भी बहुत बड़े हिस्ट्री के फ़ैन हैं, यू नो माय माय डैड्स आल्सो वेरी एजुकेटेड अबाउट इस्लाम। तो इसी तरह वो हमारे घर एक हाफिज़ साहब आए हुए थे, यू नो मौलवी साहब की मेरे ख्याल में तालीम थोड़ी कम थी शायद, या यू नो वही इससे बेसिक टिपिकल सेंटिमेंटल टाइप ऑफ मेंटालिटी, इमोशनल। तो मेरे अबू ने थोड़ी हदीसें बताई, ये सही हदीसें हैं और ये मैंने भी पढ़ी हुई थी एक्चुअली। नाउ द थिंग इज यू डोंट हियर दीस हदीस ऑन टीवी एज मच। ये हदीसें थी थोड़ी सेक्सुअल नेचर की। यहाँ पे मेरे अबू ने एक मैं आपकी बात काटूंगा बीच में। द थिंग इज के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का हर एस्पेक्ट बताया, फ्रॉम गोइंग टू द बाथरूम टू बेड लाइफ। तो ये कोई बात नहीं, एग्जैक्टली कोई बुरी बात नहीं है। ये बातें हाँ कॉन्फिडेंशियल है, जो कि आप एक बंदे को काफी एक सर्टेन एज के बाद बताओगे या अकेले बताओगे, लेकिन ये बातें ऐसी नहीं है कि आपको ओह माय गॉड ये तो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। ये वही बात है यार, मेरे बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स होता है, मेरे पेरेंट्स तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ये हर बच्चा ऐसा ही सोचता है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो हराम है। एग्जैक्टली। यू नो स्कूल में मेरे पीयर्स ने ना, मिडिल स्कूल में, मैं मेरे ख्याल में छठी जमात में था या सातवीं जमात में, शायद मेरे ख्याल में छठी में था, तो बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी पीछे था इन चीज़ों में, आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। तो एक बच्चा कहता है, dude, your mom and dad had sex to have you. I was like, no, that's not allowed in my religion. मैं छठी जमात में भी ऐसी बातें कर रहा है। इसमें ना it's a very interesting, it's a, to be honest, this is a topic for a whole podcast, but Pakistanis think where babies come from. ये मुझे याद है, मैंगो बास तो पता है इंस्टाग्राम में पेज जो है। हाँ। तो स्टोरी मैं ये बता रहा था कि मेरे अब्बू हाफिज़ साहब के साथ बैठे हुए थे ना, तो वो कमरे में बैठे हुए हैं दोनों। अब वो दोनों है और मैं हूँ, तो मैं काफ़ी मैच्योर था, मैं तुम्हारी उम्र का था, 22 सालों का। तो अब्बू उनको बता रहे हैं, यू नो, जस्ट अबाउट सी हदीस। सो हाफिज़ साहब तो वो इतने ऑफेंड हो गए थे एकदम। वो कहते हैं, देखिए जी, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप हमारी क्या कह रहे थे, अम्मा आयशा समथिंग लाइक दैट, उम्मत की माँ, द मदर ऑफ द बिलीवर्स, राइट। तो ये बहुत बेअदबी वाली बात है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। तो अबू जस्ट लाइक, यार ये हदीस है, मैं हदीस आपको बता रहा हूँ, तो अपना पॉइंट करने के लिए। तो अबू ने हदीस खैर कंटिन्यू की। वो हाफिज़ साहब खड़े हो गए, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए, वाकई चले गए, उठ के वो 2 मिनट में भाग गए घर से। He got so offended by just a word for word हदीस कि मुझे समझ नहीं आई कि यार ये किस किस्म की इन्होंने एजुकेशन की इस्लाम के बारे में, जो इन बातों को डिस्कस ही नहीं कर सकते, या उनको पता नहीं कि ये लेजिट हदीस है कि नहीं। मुझे याद है वो पाकिस्तान ना, एक सबसे मजे का वो 2002-2003 में ना रियलिटी शोज नहीं होते कि पीपल क्राउड, वो लोग क्राउड में जाके सवाल पूछते हैं लोगों से। पाकिस्तान में तो मेरे याद है अब्बू के ऑफिस में किसी से डिस्कशन हुई थी, तो अंकल ने बताया था मुझे, कहते हैं मैं तो पीटी में शो बैन कर दिया था कि पाकिस्तानी बदतमीजी बहुत करते हैं, कि आप लाइव क्राउड में कहीं जाओगे तो गालियां और गंदी आवाजें और ऐसी चीजें। कहते हैं शो करने का मजा आता है, और यूजुअली द होस्ट इज फीमेल एज वेल, तो एक बहुत ही वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो जिन दिनों ये शोज हो रहे थे ना, तो उसमें सवाल था कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी है। तो किसी ने कहा 206, 205, एक ने कहा 401। I know where this is going. एक आंसर ने तो ना मुझे हिला के रख दिया। कहते हैं जी सर, ये अल्लाह के मामले में आपको कुछ भी नहीं, हमें इंसानों को कुछ नहीं पता। अच्छा, ओके 206 साइंटिफिक है। कहते नहीं जी, आपको क्या पता है, साइंटिफिक को क्या पता, इंसान ने गलतियां होती रहती हैं, अल्लाह के निजाम है, आप बस छोड़ दें इस काम को। Wow. तो उसको होस्ट ने कहा, तभी कहते हैं मेरी जान, तभी तुमने कपड़ों की दुकान पे काम करते, और चला गया वहां से। तो मैंने कहा ऐसा बर्न देके गया ना बंदे को, कहते तभी तुमने कपड़े की दुकान पे काम करते हो, इस सोच की वजह से। ये तो बड़ी कॉमन नॉलेज है यार, इसमें या तो ये कोई बहुत डिबेटेबल फैक्ट है, हर इंसान के पास उतनी बोन्स होती हैं जितनी दूसरे के पास होती हैं। ये तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज भी नहीं है। Exactly. या तो आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन होती है कि नहीं होती है। मैंने सोचा कि जब मैं का तो एग्जाम होते हैं ना, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। Outside of the recording, Satir told me more about his passion for history. He wants to open a blog or a similar type of platform where he can try to share history
for a young audience, especially a Desi audience, many of whom are learning history from biased sources and need more education from a neutral angle. Once Satir launches this endeavor, we'll share the links to that on this episode's description and our website. We wrap up this conversation with a little bit of Satir's wild side. जहाँ तक लड़की का सवाल आता है, मुझे मैं रिलेशनशिप भी रात नहीं, एक वन साइडेड थिंग था मेरा, उसमें इतना गंदा दिल टूटा मेरा कि कभी कुछ करने का दिल चाहता, मतलब आप कहते यार क्या है, वही 3 महीने यू बिल्ड अप द करेज टू टॉक एंड यू स्टार्ट टॉकिंग, एंड में या तो रिजेक्ट हो गए, नहीं हो गए तो बाद में चीज खत्म होनी है, बट इट इज सपोज टू एंड, आपको पता है आपको बुरा लगेगा, तो व्हाई गेट इनटू इट इन द फर्स्ट प्लेस, वो चीज, लेट्स बी ऑनेस्ट, चीज गलत है ये भी. That's why it's wrong in Islam. Exactly. This is something that's like new to my life. Yeah. Because पाकिस्तान में मेरे दोस्त मेरे जैसे कि इतना था कि एक दोस्त मैंने I love you कह दिया है ना, तो दोस्त कहते हैं अभी तू क्या कर रहा है, मैंने कहा देख ब्रोमांस है, अगर मैंने ना कहा ना तो इसको कोई लड़की भी नहीं कहने लगी. तो we need this bro, bros जो है ना, we should be there for each other. It's a very vague concept कि जी बाहर गया हूँ मैं, कतर वापस गया जब पहली दफा, तो सबके साथ मेरा पहला सवाल था अस्सलाम वालेकुम, कैसा है, स्टिल अ वर्जिन? हाँ हूँ. जा यार फायदा क्या कनाडा जाने का? मैं कहा हाँ मैं तो गया ही इसलिए था कनाडा कि यही पुट्ठे काम करने हैं, मैंने वहाँ जाके डिग्री तो मैं ही. Exactly. लोग समझते हैं यहाँ पे आके ही आपको गोरी मिल जाती है, like right out of the airport, and everybody's here for that purpose. मैं तो अब इतना आके यहाँ ब्लंट हो चुका हूँ कि फैमिली गैदरिंग सी छोटी सी, फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें एक आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा व्हाट्स योर ना, हाँ कोई लड़की मिली, कोई लड़की क्या सीन है? मैंने कहा हाँ आंटी बस 2 से बात चल रही है. मैंने कहा 2 गोरी गर्लफ्रेंड्स हैं लेकिन मेन मेरी पाकिस्तानी है एक वहाँ पे. आंटी के पूरा खानदान, मतलब जो भी गैदरिंग में सबकी हक्का बक्का रह गए भाई, और वो बड़े बैठे हुए, सारे बैठे हुए, फैमिलीज बैठी हुई वहाँ पे कि बोल क्या गया है. तो मामा ने मुझे आंखें करके देखा, कहती ये क्या जवाब हुआ? मैंने कहा भाई ये सवाल क्या है? मतलब आप लोगों की क्या लगता है, जैसे सर सही लगाया कि बेटा तुम्हारी बड़ी मूछें आ गई. हाँ रजिया आंटी मूछें तो आपकी भी आ रही है. तो मेरे को ये उस टाइप का पुट्ठा सवाल है, इसका मेरा पुट्ठा जवाब ही है. वो समझते हैं कि लड़का शर्म आ जाएगा, यू नो, हमारे कल्चर में वापस बात नहीं करते, जवाब नहीं देते. एग्जैक्टली. रिसेंटली मेरी एक दोस्त है, वहाँ मॉल में खड़े हुए, इनका तो नाम मैं लूंगा, इनको उन्होंने उसमें रखना, इनका नाम है राजा जी कहते हैं हम इनको, पिंडी के हैं यार, कंजूस बंदा बहुत है वो. तो राजा जी जो है ना वो मॉल वो फूड डिलीवरी करते हैं साथ. उन्होंने पहले देखा मैं लड़की के साथ खड़ा हूँ, पीछे से गुजर गए, देखा मुझे, फिर ना स्पेशली सामने से गुजर के गए मेरे, ये देख सकें कि लड़की कैसी है. फिर मेरे एक दोस्त ने उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा खबर पहुंच गई? कहते हैं हाँ 20 मिनट पहले पहुंच गई थी. तो उस बंदे ने 2 सेकंड ही लिए कम्युनिटी को बताते हुए कि साथ लड़की के साथ कर रहा है. वाह, बड़े नोजी किस्म के लोग हैं. या तो कभी चक्कर लगा तो मुझे बताना, एंड देन फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो सकती है. या श्योर नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, ओके, या ओके, अस्सलाम वालेकुम. ख्याल रखिएगा अपना. अस्सलाम वालेकुम.